السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ، آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ گزشتہ حکومت کا قانون 42% تحفظات میں اصل رکاوٹ، BRS پسماندہ طبقات کے بارے میں سنجیدہ نہیں، ریونت ریڈی کا خطاب۔ ریونت ریڈی جنتر منتر کے پاس بھوک ہڑتال کر کے BC طبقے کے ساتھ سنجیدگی کا ثبوت دیں، اجلاس میں گلا پھاڑنے اور بل منظور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، KTR کا جواب۔ مجالس مقامی اور بلدی انتخابات میں BC کو 42% تحفظات، گرما گرم مباحث کے بعد ایوان میں متفقہ طور پر بل منظور۔ کالیشورم پروجیکٹ کے لیے KCR ذمہ دار، ڈیزائن، جگہ اور تعمیرات میں نقائص موجود، ایوان میں کالیشورم کمیشن کی رپورٹ پیش۔
पीसी घोष कमीशन नहीं, कांग्रेस कमीशन है, एक भी नोटिस नहीं दी गई। कानून की खिलाफवर्जी करते हुए कांग्रेस की सियासी इंतकामी कार्रवाई, हरीश राव का इल्जाम। और टेमरिज स्कूल के 14 साला तालिब इल्म की तबीयत बिगड़ने से अचानक मौत, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब पेश खबरें तफसील से। मानसून सेशन के दूसरे दिन इजलास के आगाज के साथ हुकूमत की बिल्स पर मुबाहिस का आगाज हुआ। बलदिया और ग्राम पंचायत के तरमीमी बिल पर गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद मुत्तफिका तौर पर इसे मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा तेलंगाना एलोपैथिक प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल पर वजीर सेहत डी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि आरोग्यश्री बिल्स की बकाया जात 6 से 7 मरहलों में अदायगी करने के लिए कानगी हॉस्पिटल से बातचीत होगी। सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर और HR के मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। क्लास 4 के मुलाजमीन की तनख्वाह की वक्त पर अदायगी को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मुबाहिस के बाद बिल मंजूर कर लिया गया। रियासती असम्बली में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मजालिस मकामी और बलदिया इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने पेश किए गए बिल पर मुबाहिस के दौरान मुदाखलत करते हुए कहा कि ऐवान को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कंगला कमलाकर से गुजारिश करता हूं कि वो पसमानदा तबकात में शुबहात पैदा करने वाली गलत मालूमात न दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अदालत के अहकामात मिलने के फौरन बाद हमने दियानतदारी के साथ अपने वादे पर कायम रहते हुए डेडिकेशन कश्मीर कमीशन तश्कील दिया। पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने के मकसद से डेडिकेशन कमीशन के जरिए जातों का सर्वे कराया गया। ये सारा अमल 4 फरवरी 2024 को शुरू हुआ और 4 फरवरी 2025 को मुकम्मल किया गया। काबीना की मंजूरी के बाद असम्बली में दोनों बिल तालीम और मुलाजिमत और मुकामी इदारों में रिजर्वेशन मंजूर करके गवर्नर को भेजे, लेकिन गवर्नर ने इनकी मंजूरी दिए बगैर सदर जमहूरिया को इसे भेज दिया। गुज़िश्ता 5 माह से वो दोनों बिल सदर के पास इल्तिवा में हैं। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 30 सितंबर तक मुकामी इंतखाबात कराए जाएं। 2018 में KCR ने जो कानून लाया था वो नाकाम हो चुका है, इसीलिए हमारी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर 50% रिजर्वेशन की हद को ख़त्म करने की तजवीज़ गवर्नर को भेजी। गवर्नर ने दूसरों की बातों पर यकीन करके वो ऑर्डिनेंस भी सदर को भेज दिया। चूंकि ऑर्डिनेंस की मंजूरी नहीं मिली, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो बिल असम्बली में मंजूर करेंगे। आज जब बिल मंजूर करने की बात आ रही है तो कुछ लोग बहकी बातें कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम को 5 बार खत लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन वक्त नहीं मिला। इसीलिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया गया, जहां तकरीबन 100 मुख्तलिफ रियासतों के MPs ने हिमायत दी, लेकिन BRS के राज्यसभा अरकान ने इधर देखना भी गवारा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि BRS के लीडर BC तबकात को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें खुलूस नहीं है। इतवार को भी वो ऐवान में हंगामा करके बिल की मंजूरी न होने के लिए झूठ पर मबनी बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए हमने 4 फरवरी को यौम समाजी इंसाफ के तौर पर मनाने का फैसला किया है। जो गलतियां BRS ने की, अवाम पहले ही उनको सजा दे चुकी है, और अगर अब भी न बदले तो अवाम आपसे वो ओहदा भी छीन लेंगे। जो काम 100 सालों में किसी ने नहीं किया, वो अगर हम करें तो हमें सराहना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो KCR का गुरूर और बढ़ जाता, लेकिन वो तो आए ही नहीं। कम से कम इस एक मसले पर जी कमलाकर को दरमियान में नहीं आना चाहिए। वो उनके दबाव में, उन्होंने कहा कि वो कलवा कुंटला नहीं बल्कि कलवा कुंटा हैं। वो ऐसा ख़ानदान है जो किसी को किसी से मिलने भी नहीं देता। पसमानदा तबकात को आपस में एक दूसरे की तौहीन करा के दूसरों के सामने कमज़ोर करते हैं। ऐसे वक्त मुत्तहिद रहें। उन्होंने कहा कि कमलाकर कांग्रेस में आ जाएं,
उनके अच्छा बुरा वो देख लेंगे। వాళ్ళకి భయపడకు మిత్రమా, మంచి సేద్యమని ఉంటే నేనున్నా, మనం పాత మిత్రులమే కదా, నీకు తెలియందేముంది. వాళ్ళ ఒత్తిడికి లొంగకు, వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ పోకడలు దగ్గరకెళ్ళి నువ్వు చూసినావు. పర్టికులర్ గా కరీంనగర్లో నీకైనా ఎల్రమ్న గారికైనా పొన్నం ప్రభాకర్ గైనా వాళ్ళ పోకడలు ఎట్లుంటాయో నీకు తెలియదా? నేను చెప్పాలనా? కాబట్టి దయచేసి, నాకు చాలా మంచిగా తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన, లేకపోతే ఎట్లా వస్తాను నేను? నాకు చాలా బాగా తెలుసు కాబట్టి కరుగాల్చి వాత పెట్టి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నా. ఇక నా గురించి కాదు చర్చ. దయచేసి నేను అందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఇదొక మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన బిల్లులు. అందుకోసమని రాజకీయ వివాదాలకు తావు లేకుండా, మీరు ఆరోపణలు చేయకుండా మీరు సూచన చేయండి. తప్పకుండా ఆ ఆయనే అధ్యక్ష, అధ్యక్ష ఆ వెనకాల గట్టిగా అరిసేట ఆయన కూడా ఆయనే అధ్యక్ష, ఆసోపతే. అందుకే ఆయనకి ఇష్టం లేదు, ఆయన కూడా అందుకే అట్లా అరుస్తున్నాడు అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష, అది కల్వకుంట్ల కాదు అధ్యక్ష, కల్వకుండా ఉంచడం అన్నమాట. ఎవ్వరు కల్వకుండా ఉండాలి. బీసీలు ఓసీలు కలవద్దు, ఎస్సీలు ఎస్టీలు కలవద్దు, మైనారిటీలు హిందువులు కలవద్దు. అది కలవకుండా చూసే కుటుంబం అధ్యక్ష, అది కలవకుండా కుటుంబం కాదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ బిల్లును చర్చ లేకుండా మన సభ అంతా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించి చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ఉంటుంది. మేము ధర్నా చేసినప్పుడు రాలేదు, మాకెట్లాగూ మోడీ గారు ఈ విషయంలో అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలే. మిత్రులు పాయల శంకర్కి ఢిల్లీలో మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. మోడీ గారు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తే మనందరం కలిసి వెళ్ళి రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర పెండింగ్ ఉన్న విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించిన బిల్లు, అదేవిధంగా రాజకీయ స్థానిక సంస్థలలో రాజకీయ రిజర్వేషన్ల బిల్లు, ఇప్పుడు చంద్రశేఖరరావు గారు 50% నియంత్రించుకుంటూ ఏదైతే తెచ్చిండో, వారు తెచ్చిన బిల్లు వల్ల పంచాయత్ రాజులో ఎస్సీ ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు తీస్తే ఆల్మోస్ట్ 27% పోతాయి అధ్యక్ష. ఇక 23% బీసీలకు వచ్చినాయి. बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केटीआर ने कहा कि रियासत में गला फाड़ने से बिल मंजूर करने से कुछ नहीं होगा, मरकजी हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। असेंबली में बिल्स पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का चैलेंज करते हुए कहा कि वो संजीदगी का सबूत दें। उनका कहना है कि कांग्रेस में 42% कोटे के मामले पर इखलास नहीं है, सिर्फ आईनी तरमीम ही बीसीस को इंसाफ दिला सकती है। केटीआर ने कहा कि ऐलानात काफी नहीं, हकीकी अज़्म दरकार है। केटीआर ने केसीआर की तारीखी कोशिशें याद दिलाईं। ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री और जात पात की मर्दमशुमारी बीआरएस का ऐलान है। अगर हुकूमत वाकई बीसी रिजर्वेशन के लिए लड़ेगी तो हम मुकम्मल ताउन करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली पी शंकर ने कहा कि असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ात बिल से पहले कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर बहस होनी चाहिए। बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कामारेड्डी डिक्लेरेशन की एक मौजू पकड़कर दूसरे बातों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि बीसी तबके के शक शुबहात को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 22 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई अमलावरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल की बीजेपी तायीद करती है। उन्होंने ऐवान में कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर बहस का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस पार्टी की जानिब से म्युनिसिपैलिटीज तरमीमी बिल की तायीद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत तमाम बीसी तबके के साथ इंसाफ करेगी, तमिल की तरह तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने वाली दूसरी रियासत बनकर बताएंगे। ऑनरेबल पैनल ऑफ स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जिस बिल पे बात करने दिया, मेरी पार्टी की जानिब से आपको इस बिल की तायद करते हैं। बीसी का जो 42% आपने रिजर्वेशन म्युनिसिपैलिटी के लिए किया है, हम इसकी भरपूर तायद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस बिल के साथ इंसाफ करेंगे और आने वाले टाइम के ऊपर पूरे बीसीस को न सिर्फ रिजर्वेशन देंगे, तमिलनाडु की तरह हम सेकंड स्टेट बनाकर रहेंगे। इस बिल की हमारी पार्टी की जानिब से तायद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को मकतूब लिखते हुए पीर के दिन गवर्नर के पास आने की दावत दी है। उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, रुकन असेंबली हरीश राव से अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुलाकात की और केसीआर को लिखा गया मकतूब उनके हवाले किया।
वाज़ेह है कि पूनम प्रभाकर ने ऐवान में कहा था कि बिल मंजूरी के बाद सब मिलकर गवर्नर से मुलाकात करते हुए ये पैगाम देंगे कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में मुत्तहिद हैं। ऐवान असम्बली में नए म्यूनसिपैलिटीज कायम करने के बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि नए म्यूनसिपैलिटीज कायम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके फंड्स और अमल पर तवज्जो देने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि एलआरएस रकम के जरिए म्यूनसिपैलिटीज की तरक्की का ऐलान किया गया था। पटना प्रगति फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। एलआरएस से हासिल किए गए फंड्स कब जारी करेंगे, इसकी वजाहत करें। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन के जरिए हासिल होने वाली रकम से तरक्की दी जाए। नए म्यूनसिपैलिटीज में स्टाफ की कमी है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पर कांग्रेस कामयाब हुई है, कई इलाकों में मंजूर शुदा काम को फंड्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएफ, टीवीएफ, आईडीसी के फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। ये रकम जल्द से जल्द जारी करने का मुतालबा किया। सीपीआई के रुकन असम्बली सांबा शिवराव ने कहा कि असम्बली की कार्रवाई फिल्म की तरह दिखाई दे रही है। बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ बिल की तायीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का हुकूमत का फैसला इनक़लाबी फैसला है। उन्होंने कहा कि ऐवान में कौन क्या बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बीआरएस पार्टी एक तरफ तायीद कर रही है तो दूसरी तरफ कह रहे हैं नवे शेड्यूल में शामिल करने तक ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका मकसद एक है तो बात भी एक होनी चाहिए। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का कहना है कि 10 सितंबर के बाद बलदियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उनका कहना था कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बलदियाती इंतखाबात से कबल एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को असम्बली में पेश कर दिया है। हुकूमत ने मुकम्मल रिपोर्ट को अरकान असम्बली को पेन ड्राइव में फराहम किया। 600 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस रिपोर्ट में मनसूबाबंदी, तामीरी नक़ाइस और मंजूरी, तखमीने की तैयारी में जो नक़ाइस हैं इसका अहाता किया गया है। माहिरीन की कमेटी के मुताबिक मेडीगुड्डा बैरेज को तामीर नहीं करना चाहिए था। तमड़ीहट के पास पानी की मौजूदगी न होने पर मेडीगुड्डा के पास तामीर मुनासिब नहीं है। उस वक्त के वज़ीर आला केसीआर के फैसले के मुताबिक मेडीगुड्डा, सुंदेला, अनारम बैरेज तामीर किए गए। तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर के तरीक़ेकार भी दुरुस्त नहीं है। कमेटी ने कहा कि डीपीआर का मुकम्मल जायजा लिए बगैर तखमीना मंजूरी दी गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तखमीना में इजाफे के लिए क़वायद में नरमी लाई गई। कमेटी ने कहा कि एजेंसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तखमीने में इजाफा किया गया, जिससे ख़जाने को नुकसान हुआ है। कमेटी ने कहा कि इन बैरेजेस के डिज़ाइन भी बराबर नहीं हैं। वज़ीर आबपा श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बैरेज और प्रोजेक्ट में फ़र्क किए बगैर कालेश्वरम तामीर किया गया। ऐवान असम्बली में कालेश्वरम रिपोर्ट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा, एनडीएस से रिपोर्ट के मुताबिक बैरेज और प्रोजेक्ट में फ़र्क किए बगैर तामीर किया गया। और उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मेडीगुड्डा बैरेज में पानी की मुकम्मल सैराब होने की वजह से शगाफ पड़ा है। उन्होंने कहा कि 87,449 करोड़ रुपए से तामीर किया गया बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेडीगुड्डा, अनरम, सुंदेला बैरेज बिल्कुल नाकारा हो गए हैं। 20 माह में ये तीनों बैरेजेस नाकारा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि माहिरीन ने मेडीगुड्डा बैरेज को तामीर न करने की सलाह दी थी। प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट जो 38,000 करोड़ रुपए में मुकम्मल हो सकता था, इसको बाजू रखकर 1,47,000 करोड़ रुपए की लागत से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आगाज किया। 2019 था 2025 162 टीएमसी पानी ही लिफ्ट किया है। इसके बावजूद बीआरएस कायदीन कमीशन और एनएसडीए के खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट नहीं, कांग्रेस कमीशन की रिपोर्ट है। ऐवान असम्बली में कमीशन की रिपोर्ट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि यह सियासी इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि पीसी घोष कमीशन ने गैर जानिबदाराना काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 1952 एक्ट के मुताबिक कमीशन 8B के तहत पीसी घोष ने कोई नोटिस नहीं दी। हरीश राव ने कहा कि 1952 एक्ट के मुताबिक तहकीकात के बारे में हर एक को जानने का हक है
हरीश राव ने कहा कि माजी में एल.के. आडवाणी, इंदिरा गांधी पर कमीशन डाली गई, जिसको खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को भी अदालत जाकर इसको खारिज करा देगी, इसलिए जल्दबाजी में इतवार को रिपोर्ट ऐवान में पेश की है। ये बराबर इंतकामी कार्रवाई है, जिस पर सीदर बाबू ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई करने के लिए इतने वक्त की जरूरत नहीं है, इख्तिदार में आते ही दूसरे दिन ही कार्रवाई कर सकते थे। दारुस्सलाम में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने इसकी सदारत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला नौ तश्कील शुदा कमेटी के इंचार्ज होंगे। मज़कूरा कमेटी 11 वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल होगी। सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि जब से दारुस्सलाम में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हो रहा है, अवाम खुद ब खुद जोश खरोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। उनका कहना था कि अनकरीब मज़कूरा जलसे को मुखातिब करने वालों और मुशायरे में हिस्सा लेने वाले शुअरा किराम के नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सीनियर खातून लीडर आयशा फरहीन मजलिस पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, जिस पर सदर मजलिस ने उनका मजलिस पार्टी में इस्तकबाल करके मुबारकबाद दी है। आयशा फरहीन ने मजलिस को मजबूत बनाने और अवाम के दरमियान रहकर खिदमत करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर दूध बाउली डिवीजन के इलाके चंदुलाल बारादरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि दूध बाउली डिवीजन में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम, सीसी रोड, सीवरेज लाइन जिसमें बॉक्स ड्रेन और पीने के पानी का पाइपलाइन शामिल है, बहुत जल्द सदर मजलिस के हाथों इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने चंदुलाल बारादरी के दौरा करके सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत की और एक सुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुअतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने अमीनपुर, बैरमगोड़ा, संगारेड्डी का दौरा करके 2 BHK ब्लॉक्स का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके ब्लॉक्स की तफसीलात हासिल की, जिस पर मुकामी अफराद ने पीने के पानी की सरबराही कहा कि कई दिनों से बंद होने की शिकायत की। अलावा अजीम मकीनों ने सीवरेज लाइन और बच्चों के लिए स्कूल और तिब्बी सहूलतें न होने की शिकायत की। रहमत बेग ने मुकामी अफराद को तयक़ुन दिया कि वो मज़कूरा मसाइल की तरजीही बुनियाद पर एकसुई करके के लिए सरकारी महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत देंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुअतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर जहानुमा डिवीजन में 11 kV ज़ेर ज़मीन हाई टेंशन बरक़ी लाइन्स का काम मुकम्मल हो गया। रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में यह काम पूरा करवाया, जिसकी वजह से साबिक़ में शॉर्ट लगने से एक संगीन वाक़े में कई अमवात हुई थीं। मोहम्मद मुबीन ने सिलसिले में CMD मुशर्रफ फारूकी से नुमाइंदगी करके फलकनुमा, काला पत्थर और दूसरे अहम सड़कों पर कि 11 kV हाई टेंशन वायर की जगह तब्दील करने या इसे ज़ेर ज़मीन करने की नुमाइंदगी की थी। हफ्ते की रात में यह काम मुकम्मल हो गया। इस मौके पर महकमे बरक़ी के अहदेदार और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुअतमदीन मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है, जिसके बाद कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता दिनों की बारिश ने कामारेड्डी और निजामाबाद समेत रियासत के कई अजला को मुतासिर किया था, जबकि इन बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने बताया कि खलीज बंगाल में बना हवा के दबाव के बाइस शदीद बारिश का इम्कान है। आसिफाबाद, मंशरियाल और भोपालापल्ली में शदीद बारिश, जबकि दीगर कई अजला में हल्की ता दरमियानी बारिश की पेश कयासी की गई है। अबू सईद कॉलोनी संतोष नगर डिवीजन के टेम्ब्रिस स्कूल याकूतपुरा बॉयज 2 में ज़ेर तालीम एक लड़का 14 साला मोहम्मद रिजवान की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत वाक़ हो गई।
मोहम्मद रिजवान को फोकस दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां दवाखाने की डॉक्टरों ने बताया कि लड़का रास्ते में ही फौत हो गया। वाक़े की इत्तला मुतवफ़ी लड़के के अफराद खाना और रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज को दी गई, तो जाफ़र हुसैन मिराज ने जारी असम्बली के अजलास को छोड़कर फोकस अस्पताल पहुंच गए। जाफ़र हुसैन मिराज ने इस सानहे की इत्तला सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ शफ़ीउल्लाह को दी। उन्होंने मुतवफ़ी लड़के के गमज़दा अफराद ख़ानदान से मुलाकात करके इजहार अफसोस किया। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने तेलंगाना हुकूमत से फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और किसी भी किस्म की लापरवाही के लिए स्कूल को जवाबदार ठहराया है। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया कुरमागुड़ा डिवीज़न शफ़ाअत अली और वासिउद्दीन, रुकन बल्दिया रेन बाज़ार डिवीज़न के अलावा मजलिस की इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन मौजूद थे। फलकनुमा डिवीज़न के इलाके रविंदर नायक कॉलोनी में गणेश पंडाल की लाइट लगाने के दौरान बरक़ी शॉट लगने से एक 33 साला शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक भास्कर, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, छत पर चढ़कर बरक़ी तार लगा रहा था कि वो शॉक लगने से बरसरे मौका हलाक हो गया। फलकनुमा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और गणेश पंडाल के जिम्मेदारों के खिलाफ एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात की जा रही हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से गणेश पंडालों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुज़िश्ता हुकूमत का कानून 42% तहफ़्फ़ुज़ात में असल रुकावट। BRS पसमानदा तबक़ात के बारे में संजीदा नहीं, रेवंत रेड्डी का खिताब।
रेवंत रेड्डी जंतर मंतर के पास भूख हड़ताल करके बीसी तबके के साथ संजीदगी का सबूत दें। इजलास में गला फाड़ने और बिल मंजूर करने से कुछ नहीं होगा, केटीआर का जवाब। मजालिस मुकामी और बलदी इंतखाबात में बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात। गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद ऐवान में मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए केसीआर जिम्मेदार। डिजाइन, जगह और तामीरात में नक़ाइस मौजूद। ऐवान में कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पेश। पीसी घोष कमीशन नहीं, कांग्रेस कमीशन है, एक भी नोटिस नहीं दी गई। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कांग्रेस की सियासी इंतकामी कार्रवाई, हरीश राव का इल्जाम। और टेमरिज स्कूल के 14 साला तालिब इल्म की तबीयत बिगड़ने से अचानक मौत, मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 टीवी खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 टीवी न्यूज़। खुदा हाफिज़।